चले. So first of all, we are going to start with acids, बच्चों, and then we will move towards bases. First of all, we need to talk about acids whole, then we will move towards bases. So I am going to start with acids. So I just want to ask from your side, बच्चों, कि आप लोगों को क्या पता है acid के बारे में? So I am just going to start with Afifa. Yes, Afifa, आप क्या बता सकती हैं acid के बारे में? It's any aqueous solution that has a pH of 7 or less than 7. 7 or less than 7? No, sorry, less than 7. Less than 7. Very good. Yes, Madi, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? Madi, फरमाइए. No, sir, I was about to share the same point that it has less than 7 pH. Yes, that's good. Sir, they are proton donor. Very good. They are proton donor. Very good. Yes, Ali Aslam बताना चाह रहे हैं. Ali Aslam जी बताइए. मैं एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था, बता सकते हैं सवाल क्या था? हाँ, सवाल ये था कि what is acid in your terms? सर it fully ionizes in water to produce कौन से ions थे वो? कौन से ions थे वो? कौन से ions थे वो? हाइड्रोजन आयंस थे. हाइड्रोजन आयंस है. Yes, हाइड्रोजन आयंस. हाइड्रोजन आयंस थे वो जी. उसके अलावा मुझे बताना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से और भी कुछ बच्चे. इफ्रा बताना चाह रही थी. इफ्रा. They are soluble in water. They are soluble in water. Exactly right. Yes. और रहमा बताना चाह रही हैं जी. रहमा. सर जो पानी में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस डोनेट करता है. Very good, very good. First of all, Rahma, I just want to welcome you back to the classes, right? और उसके अलावा और कौन बताना चाह रहा है? Light witness paper blue. That's very good. That's very good. Absolutely perfect. They produce okay. Hydrogen ions. That's very good. Yes, Ayan, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? They are sour when edible. Very good. They are sour in taste. Very good. Very good. Yes, every one of you are absolutely right. But we are talking about the definition right now. So it's very important to learn the definition for past papers questions, and for exam. It's very important for you to learn the definition. So the definition, most of you tell me the definition as well. You can say that, but so that substances that produce H positive ion, in aqueous solution. जब आप उसको पानी में dissolve करते हो तो पानी में dissolve होने के बाद they will produce H positive ions. Am I right, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So let's talk about their dissociation equations. अगर हम dissociation equation देखें, मतलब कि हम देखें तो सही कि यहाँ पर कौन सा ऐसा substance है जो कि पानी में dissolve होने के बाद H positive ion produce कर सकता है. So if you talk about dissociation equation, so सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले we just need to talk about HCl. So if you just focus on HCl, so if it dissociate in aqueous solution, so it will produce बच्चों what? H positive ion and chloride ions. Is that right or not? Yes, sir. Yes. Same as it is if you talk about H2SO4. If you talk about H2SO4, so how many H ions does this substance produce, bachcho? 2, sir. 2 hydrogen ions. That's very good. 2 hydrogen ions along with sulfate 2 minus. Is that right or not? Yes, sir. Then if you talk about bachcho nitric acid, so how many H ions does this substance produces? 1 hydrogen ion, H positive ion and 1 nitrate ion. That's very good, bachcho. Okay, so these are dissociation equations, and by these equations, it is verified that you can see that these are the substances and they all are acid because they all are producing H positive ions in aqueous solution. Definitely, कोई एक produce कर रहा है, कोई दो produce कर रहा है. This is not the matter right now, but ये सब H ion produce कर रहे हैं, so they all are acids, right? Yes, sir. That's right. Then we have one more definition which is new in our syllabus that we need to know is acids are proton donor. Acids are actually the substances जो अपने proton क्या करते हैं? Donate करते हैं. तो acids are
proton donor. This is the new definition in our syllabus that we need to know कि ये भी एक एसिड की डेफिनेशन है. एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं. ठीक है बच्चों, अब ये प्रोटॉन का मतलब है H पॉजिटिव आयन. Why we are calling H positive ion as a proton? You can see over here बच्चों, H का proton number कितना होता है 1, mass number कितना होता है 1, and right now it is positive. So you can see this, how many protons it has? Only 1. And how many electron it has? It has only 1 electron, but because it is positive, so it's lose their electron. Hydrogen lose their electron, so it is 0 right now. And neutrons are also, when we subtract proton number from mass number, so it is also 0. So right now हाइड्रोजन आयन जो है इसके पास सिवाय प्रोटॉन के कुछ भी नहीं. ऐसे ही है बच्चों. तो जब ये हाइड्रोजन आयन किसी को दे दिया जाएगा, सो इट्स टर्म एज कि यार प्रोटॉन दिया जा रहा है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं उसके पास, ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है. तो अगर हम हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं तो इट्स कंसीडर एज कि यार हम हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं या प्रोटॉन दे रहे हैं की बात है, क्योंकि है ही उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन. राइट बच्चों? Yes, sir, right. Yes. If you say that acids are proton donors, so it means you are actually donating H positive ions. ठीक है भाई? So let's see the equation for this. For suppose आपके पास HCl है, HCl को आपने पानी में डिसॉल्व किया, तो होता क्या है एक्चुअली आपके पास, ये जो H है Cl, HCl का जो H है ये हाइड्रोजन को वाटर को चला जाता है, तो it will be H3O positive plus Cl negative. So you can see this, HCl ने अपना H positive ion donate कर दिया है किसको? पानी को. So that is why it is forming what? HClO. So you can see this, there is a proton donation. So it's donate its proton. It's इस वजह से ये कहला रहा है acid. It is termed as acid. Right बच्चों? Is that clear? Sir, Yes, ये sir. H2 ion is hydronium ना? Yes, H3O positive को आप hydronium ion बोल सकते हो, but it is not in our syllabus. So अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो, otherwise जरूरत भी नहीं. सही है? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम बेटे. सर ये प्रोटॉन डोनर कैसे होते हैं? प्रोटॉन तो जाते नहीं है किसी के पास, तो प्रोटॉन कैसे डोनेट करेंगे? जी, मैंने आपको यही बताया कि प्रोटॉन डोनर हमने इसको किस तरह बोला है. एक्चुअली हमने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया. ठीक है ना? हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन के पास एक प्रोटॉन है और कुछ भी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन है ना ही न्यूट्रॉन है, ना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना ही न्यूट्रॉन है. तो एक्चुअली वो जो हाइड्रोजन आयन गया है उसको आप सपोज कर रहे हो कि यार ये प्रोटॉन क्या कह रहे हो बेटे? ये एसिड बेस है ना? जी बेटा, अब जस्ट हमने अभी डेफिनेशन से स्टार्ट किया. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एसिड. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं. एक्वा या एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशंस में. ये दो डेफिनेशंस अभी हमने बात की. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू कि क्यों हम इसको प्रोटॉन डोनर बोल रहे हैं? सर ये आप Yes, एक दफा sir. रिपीट कर देंगे सर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, 9 मिनट्स. ठीक है, कोई मसला नहीं है. देखें आपके पास एसिड्स की डेफिनेशन क्या है. एसिड की पहली डेफिनेशन आपके पास ये है कि इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एसिड, तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस. वो सारे सब्सटेंसेस एसिड कहला सकते हैं जो कि जब पानी में डिसॉल्व हो तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करें. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड्स. सो यू कैन सी दिस, HCl पानी में डिसॉल्व होगा तो H आयन प्रोड्यूस करेगा और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा. H2SO4 डिसॉल्व होगा तो 2 H आयंस और एक सल्फेट. HNO3 डिसॉल्व होगा तो H आयन और नाइट्रेट आयन. सो वो सारे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन डोनेट करें या प्रोड्यूस करें, उनको हम क्या बोलते हैं भाई? दे आर एसिड्स. राइट? और दूसरी डेफिनेशन क्या है? आप कह सकते हो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर. अब उसको हम प्रोटॉन डोनर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एसिड अपना H आयन डोनेट कर रहा है, तो H आयन के पास प्रोटॉन के अलावा कुछ है ही नहीं. जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये H पॉजिटिव आयन है, इसके पास सिवाय प्रोटॉन के और कुछ भी नहीं है, तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि यार हम प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं क्योंकि उसके पास तो प्रोटॉन के अलावा कुछ है ही नहीं. Yes, sir. Is that clear every one of you? Yes, sir. जी Okay, सर. then we have two types of acids actually. If you just consider with equations, just look at over here with the equations. For suppose we have HCl, when it dissociate into the water, it produce H positive ion and chloride ions. Right, bacho? Yes, sir. Right. For suppose you have H2SO4, when this H2SO4 dissolve in water, it produce H positive ions and sulfate ion. Is that right, bacho? Right, sir. Yes, sir. Same as it is, we have two more acids. This is carbonic acid that we used to have in cold drinks, right? Carbonic acid. When we dissolve this into the water, it will produce this ion and H positive ion.
Same as it is, this is ethanoic acid, which is mostly known as vinegar in our houses. इसको हम as a vinegar consume करते हैं घरों के अंदर, ठीक है ना? When it is going to dissociate into the water, it will dissociate like this, right? So I just want to ask from you, your side, बच्चों, कि क्या आप मुझे बता सकते हो what is the difference between these two? Zuhair, क्या आप मुझे बता सकते हो बेटे कि what is the difference between these two columns? Sir, the first column, it just gets rid of the hydrogen, and the second one, it's only the donating one. अच्छा, और मुझे कौन बताएगा? और कोई मुझे बता सकता है? एक weak acid है, एक Can I- strong है. Sir, जी सर बताओ जी। फर्स्ट इक्वेशन में जो है हाइड्रोजन कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, जबकि सेकंड इक्वेशन में हाइड्रोजन पार्शियली आयनाइज हो रहा है. Yes, the thing to understand over here between these two columns is this. अगर आप यहाँ फोकस करो, so just look at over here. यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन था and the hydrogen is going to be dissociated. जो एक था वो completely dissociate हो गया. यहाँ पर दो थे, दोनों के दोनों अलग हो गए. This is what complete dissociation. जितने हाइड्रोजन आयन से सारे decompose हो गए, सारे dissociate हो गए, सारे ionize हो गए, सारे separate हो गए. But over here अगर आप यहाँ देखो तो we have two hydrogens, but only one is dissociating, ionizing. Here we have four hydrogens, but only one is dissociating. So you can see the difference over here. The one is completely dissociation and the one is partial dissociation. So this is actually the difference between strong and a weak acid. So you can say that this is strong acid. वो सारे acids आपके पास strong होते हैं जो कि dissociate हो completely. You can say that completely dissociate या completely ionize. दोनों word आप इस्तेमाल कर सकते हो. Dissociate का भी word इस्तेमाल कर सकते हो और ionize का word भी इस्तेमाल कर सकते हो. And over here, this is known as weak acid, and you can say that right now this is actually partial dissociation, right? So you can say that it is partially ionized yet dissociate. Is that right, bachos? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir, yes. If examiner asks you to define strong acid, तो आप उसको किस तरह define करोगे? You can define that the acid. अब आप यहाँ नहीं लिखोगे substance, अब आप यहाँ लिखोगे acid which dissociate completely in the aqueous solution. जी. सर ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन के बारे में. देखो एसिड के अंदर आप हाइड्रोजन आयंस की बात करते हो तो आप हाइड्रोक्साइड आयन की क्यों बात करोगे? नहीं कि हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा होती है स्ट्रांग में के बारे में. हाइड्रोक्साइड क्यों बोलोगे? हाइड्रोजन आयन बोलोगे ना. ओके. क्योंकि एसिड जो एसिड बिहेवियर शो कर रहा है, द ओनली थिंग इज हाइड्रोजन आयंस. जो कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट करता है या हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, वो एज एसिड कंसीडर किया जा रहा है. तो आप हाइड्रोक्साइड आयन की बात नहीं कर सकते हो. हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे हम अल्कलीन्स के अंदर. वो अल्कली में है, सॉरी. जी. So right now we are talking about acids. So you need to keep remember the only ion which is responsible for the acidic behavior is H ions. Right? You need to keep remember the H ions are actual responsible ions that causes acidic behavior. That is clear or not? Yes, sir. सर ये आप Yes, रिपीट sir. करेंगे जो लास्ट बात बोली आपने? Yes, I am saying that H ions are the only responsible ions for the acidic behavior. H ions are responsible for acidic behavior. ओके सर. ठीक है बच्चों? जी सर, ठीक है. Now अगर एग्जामिनर आपसे पूछे define weak acid, तो आप डिफाइन करोगे. ये बड़ा कंसिस्टेंट पार्ट है, एग्जाम में बहुत पूछता है. तो आप बोल सकते हो the substance या the acid which dissociate partially in the aqueous solution, right? आप ये भी कह सकते हो acids that dissociate partially in the aqueous solutions. You need to keep remember कि अगर आप acid का लफ्ज यूज कर रहे हो, so you need to say that acids that dissociate partially, that's fine. ये हो गया weak acid. लेकिन अगर आप substance यूज कर रहे हो, so you need to mention hydrogen ions over there. So you can say that substance that dissociate partially to produce H positive ions. ठीक है ना? Is that clear? जी सर. सर पीएच क्योंकि का अगर क्या आप फर्क बोलते हो, होगा? फर्क ये होगा कि फॉर सपोज अगर आप बोल रहे हो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट पार्शियली, सो इवन वो वीक बेस भी तो हो सकता है ना जो पार्शियली डिसोसिएट होगा, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया एच आयंस या OH. पीएच में क्या फर्क होगा?
pH में बिल्कुल फर्क होगा. If you talk about strong acids, so strong acid की जो pH होती है, it will be near to 1 to 3, right? बिल्कुल lowest की तरफ जाती है. और अगर आप बेस ये weak pH acid की मतलब. बात करें, yes, और इनकी pH होगी 4 to 6. There will be some, you can say that near to neutral, right? सर ये पीएच वाला क्या वो है इसका कॉन्सेप्ट, पीएच स्केल और ये सब? बिल्कुल, pH की बात हम अलग से करेंगे. Right now we are not talking about pH, so just relax about pH. अभी उसको छोड़ दें. We are just talking about right now acids, so we need to focus on acid first. First of all, we need to understand acid and bases. Then we will talk about pH and pH strength, right, बच्चों? ठीक है सर. Okay, so got the definition of acids, बच्चों. पहले तो आपको याद रखना है कि we need to know the definition of acids first. तो एक definition acid की ये हो सकती है. It can be asked in exam for 1 mark, or even you can write this one. दोनों में से कोई सी भी आप definition लिख सकते हो for acid. And this is the dissociation equation that can also be asked in exam for 1 mark. So you need to keep remember this as well, right? And you need to make the difference between the definition of a strong acid and weak acid. It can be even asked in exam for 1 mark. Is that right, bachcho? Yes sir. So these are the things that you need to keep remember for the past papers questions. आप वहाँ देखोगे तो इसको आपने इस तरह solve करना है. Let's talk about some physical properties of acids. If we talk about the physical properties of acids, तो जरा मुझे बताइए कौन मुझे बता सकता है कोई एक physical property acid की. किसी ने बताई भी थी अभी एक physical property when we were talking about acids. जी, मुझे जरा बताएं कि कौन बता सकता है कोई एक physical property acid. Color difference. They are सर color difference बोल सकते हैं? color difference. Sir, may I try? No, like what strong weak में. dissolve in water. देखो इतना Sir, deep ना जाओ. acid color turns difference. blue litmus paper red. That's fine, but color changes. Sir, sour in taste. Yes, this Yes, is sir. one of the physical property. You can say that they are sour in taste, right? Acids are sour in taste. Definitely आप सब ने चखे होंगे acid. आपने lemon चखा होगा, आपने orange चखा होगा, आपने vinegar भी खाया होगा. Is that right? सर or हम not? टेंजी कह सकते हैं, मतलब टेंजी फ्लेवर, मतलब तो थोड़ा खट्टा कह लें. Yes, sour is the same as tangy, right? Okay, sir. But sour is the best word to use this, right? खट्टे होते हैं. आप सबने चखे हैं definitely. Yes, sir. जी सर चकें बहुत दफा. जी सर. अगर देखें अगर आपको मेरी बात पर यकीन है, that's very good. कि आप मेरी बात पे यकीन करते हो that acids are sour in taste. Otherwise, you are allowed to taste HCl and H2SO4 as well. ये आप चख सकते हैं, है ना? ठीक है? Yes. अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है, तो आप ये कह सकते हैं कि HCl और H2SO4 भी sour in taste होंगे. Otherwise, you can go and taste that, right? It's all up to you. मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, ठीक है ना? अगर आप चखेंगे तो हाँ जी सर टेस्ट करके जो है वो तो एसिड जो है वो तो स्किन जला देता है. ये तो Yes. ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. हाइड्रोक्लोरिक सर. एब्सोल्युटली, वही मैं कह रहा हूँ. मैं यहाँ कहीं नहीं हूँ. अगर आपको टेस्ट करना है तो आप अपने ऊपर रखकर टेस्ट कर सकते हो. ये मत बोलना सर ने कहा था टेस्ट करने के. मैं तो कह रहा हूँ खट्टे होते हैं. सही है? Do it at your own जी risk. सर. हाँ, do it on your Do it own at your risk. home. Yes, अब इसको होम पे भी करना नहीं है. गाड़ी की बैटरी में से निकालना पड़ेगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड, या तो वॉशरूम क्लीनर, तो कोई टेस्ट करेगा नहीं डेफिनेटली, है ना? नहीं नहीं सर. देन Sir- सेकंड वन बच्चों. Sir, जी. acids conduct electricity in a liquid state. Yes, absolutely. You are absolutely right. They are conductor of electricity because we know that when they are going to dissolve in water, they are producing ions, and one of the ions is H positive ion. So wherever we have ions in the solution, definitely they can conduct electricity. That's perfect answer. You can say that acids are the conductor of electricity. Acids can conduct electricity. And why they can conduct electricity, bachcho? Because they have mobile ions, right? And what the reason is? Due to the mobile ions. Reason is mobile ions. You need to keep remember that acid जो है mobile ions की वजह से electricity conduct करते हैं. Is that right? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. What about the conduction of electricity difference between strong acid and weak acid? Strong acid Strong acid ज्यादा strong acid- conduct करेंगे electricity. Weak don't conduct electricity that होगा या बहुत कम होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा. Yes, you can say that they are. You can say that they are strong conductor or good conductor, right?
and this is a partial conductor, right? Definitely when you have lower ions, so it will definitely conduct electricity, but with low grades, right? So voltage थोड़ा सा कम हो जाएगा. So अगर आपसे पूछा जाए which one is the best conductor of electricity, sulfuric acid or ethanoic acid? So which one is the best conductor? Sulfuric. Sulfuric ये acid is best सर ये conductor वाला आप between these. एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, पता नहीं क्यों. जी, right now we are talking about the conductor of electricity. So जिसके पास आयन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिसके पास आयन्स कम होंगे वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है आयन्स की वजह से, तो जिसके पास ज्यादा आयन्स होंगे वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दे डिसोसिएट कंप्लीट, तो दे हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयन्स ओवर देयर, so they can conduct electricity very well. But if we talk about weak acids, so they have you can say that a lesser dissociation over there, so definitely they have lesser ions. So when they have lesser ions, so they will conduct electricity accordingly, right बच्चों? जी सर, राइट. So और सर ये definitely आयंस this जो है will सर, ये जो है help. नेगेटिव पे डिपेंड होते हैं ना, मतलब जो है नेगेटिव आयंस, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो नहीं करते ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट. नहीं, ऐसा आप ना कहें, ऐसा आप इतना इतना डेप्थ में ना जाएं. फिलहाल आप आयंस फ्री हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, यू हैव फ्री आयंस. जब आपके पास फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और सिर्फ नेगेटिव आयंस नहीं हो सकते. डेफिनेटली अगर एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव से अलग हुआ है तो एक पॉजिटिव भी होगा, एक नेगेटिव भी होगा, ठीक है ना? अच्छा सर, तो मतलब एन आयन और कैट आयन दोनों कंडक्ट करते हैं जिस तरह, तो वो उसमें होता है इलेक्ट्रोलिसिस में मेरे ख्याल में. बेटे एनाइन और कैटाइन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सॉल्यूशन के थ्रू. व्हेन वी हैव गैप्स ओवर देयर, वी हैव जी. आयंस ओवर देयर, सो ड्यू टू देयर delocalized आयंस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? ओह ठीक है सर, समझ गया समझ गया. अब ये ना कहें कि कैटाइन के पास आई इलेक्ट्रिसिटी, उसने एनाइन को दिया, एनाइन ने फिर दूसरे कैटाइन को दिया, ऐसा कुछ नहीं. वी जस्ट हैव अ सॉल्यूशन, उसके अंदर आयंस में गैप हो गए, वो जो है एक दूसरे से डिसोसिएट हो गए, दूर हो गए, सो वी हैव गैप्स ओवर देयर, देन वी कैन have the conduction of electricity through them, right? Same as it is. अगर आप metals की बात करोगे, अगर आप metals की बात करोगे या किसी graphite की बात करोगे, तो there will be a electricity conduction through mobile electrons. वहाँ electrons की वजह से होती है, और वहाँ positive ions और electrons होते हैं. metals के structure में positive ions और electrons होते हैं, तो वहाँ positive ion अपनी जगह रहते हैं, they will stay on their places, और electricity conduct हो रही होती है delocalized electrons की वजह से. तो वो आप वो वाला concept इसके साथ मैच कर रहे हो, ठीक है? ओह सही है सर, समझ गया. ठीक है भाई. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब मुझे कौन बताएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों? टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. या कलर चेंज हम एक साथ नीचे लिखेंगे, ठीक है ना? उसके अलावा बताओ. They are Acids are corrosive. They are corrosive. That's brilliant. They are corrosive and you can say that they are toxic. आपको पता होगा इस बात के बारे में, अगर कोई आप खट्टी चीज ज्यादा खा लें तो वो पूरा आपका बॉडी पूरा दिन खराब रहती है ना, अंदर से कैसे अजीब सी इची सी हो जाती है आपकी बॉडी. वो जैसा लगता है जैसे कोई खाल हट गई हो वहां से, और वहां से जब पानी जाता है तो बार बार टच होता हुआ जा रहा होता है. दैट्स लाइक कि आप ज्यादा खट्टा खा लो तो आपका गला खराब हो जाता है, वो कट जाता है, थोड़ा सा स्लैशेस पड़ जाते हैं उस पे, राइट? तो इसी तरह जब आप किसी एसिड के अंदर हाथ डालोगे तो आपका हाथ जो है जल सकता है, आपका हाथ जो है खराब हो सकता है. सो अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, अगेन दैट्स ट्रू. अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, दैट्स फाइन. अदरवाइज यू कैन पुट योर हैंड टू द एसिड एंड चेक दिस, राइट? बट डू एट योर ओन रिस्क, राइट बच्चों? और कौन बताएगा? They are soluble in water. Yes, definitely they are soluble in water. That is why they are going to produce H ions, and that is why they are behaving like acid. So soluble in water. सर रिएक्शन Reactive. बताना. देखो, reaction is not a physical property बेटे. ओके सर. Sir, colorless solutions. Colorless They have solutions. You can say that. have a Colorless pH solutions. less than 7. Yes. ऐसे Colorless स्टेट क्या solutions होती होते है? हैं. मतलब यूजुअली लिक्विड ही होते हैं. Yes, aqueous solutions होते हैं ना, ये तो सारे liquids होंगे. अभी बताता हूँ आपको, एक मिनट रुको. क्या बताया था? किसी एक ने बताया था pH less than 7. ठीक है, और बताएं, और कोई बता सकता है? अच्छा देखिए, अगर आप बात करें कि वो उनकी स्टेट कैसे होती है, तो देखिए आप पहले तो आप ये बात याद रखें, क्योंकि आपके पास एसिड्स होते हैं ना, वो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं आपके पास, वो एसिडिक होते हैं, ठीक है ना? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आपके पास कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं. एंड द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एक्चुअली गैसेस, राइट? तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है,
आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दे ऑल आर गैसेस। ये सब क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं देन दे विल प्रोड्यूस एसिड्स, राइट? तो सही है राइट सर। नाउ यू कैन से दैट कि इनकी जो स्टेट आप लिखोगे वो आप क्या लिख सकते हो? इनकी स्टेट आप लिख सकते हो एक्वस। क्या लिख सकते हो बच्चों? एक्वस। Aqueous. तो इनिशियली गैसियस थे ये? यस, इनिशियली ये गैसियस होते हैं। सो सेम एज इट इज इफ यू हैव HCl, ठीक है ना, and if you have HCl aqueous, so what is the difference between these two? You need to understand this. ये है आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है आपके पास? ये Hydrogen हाइड्रोजन chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड। This is the gaseous, and what is this? This is hydrochloric acid. ठीक है सर, समझ गया। So this is the difference between the gaseous substances and their aqueous solutions. So you need to understand, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से pH किसकी ज्यादा होगी या किसकी acidic pH होगी, so you need to remember this कि यार इसकी pH acidic होगी, क्योंकि जब ये पानी में dissolve होगा, H ion produce करेगा, तभी ये as a acid workout कर सकता है। हाइड्रोजन गैस acidic workout नहीं करेगी। अगर फॉर सपोज हम कोई प्लास्टिक बर्न करते हैं, उस प्लास्टिक के बर्न करने से HCl गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो HCl गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो एसिड रेन क्यों कर रही है? क्योंकि वो ऊपर जाएगी, बादलों के अंदर पानी में डिसॉल्व होगी, HCl बनेगा, तब वो बरसेगा तो एसिड रेन होगी। सिर्फ HCl गैस एसिड रेन नहीं तो कर सर सकती। ऑक्साइड There जो must है be water involved. सर ऑक्साइड बेसिकली वो उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब जो कहने का ये है ना। यस एग्जैक्टली। अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अपने हाथ से पकड़ लो इफ पॉसिबल, तो वो आपके हाथ को खराब नहीं करेगी। डेफिनेटली अगर वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, फिर आप उसके अंदर अपना हाथ डालें, सो इट विल डिस्ट्रॉय योर हैंड, राइट? जी सर। राइट सर। Is that clear, every one of you? यस जी सर, क्लियर। Yes, So sir. actually what is the difference between these two? The hydrogen chloride अगर आप देखो, so this will be hydrogen chloride, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, this will be hydrogen chloride, right? Right. जी सर, And राइट। when this hydrogen chloride dissolve in water, then it will produce what? H positive ion and chloride negative ion. Just look at over here. Now they are going to be form ions, right? तो ये अब आपके पास कुछ और हो गया, ठीक है ना, कुछ और सेटअप हो गया। And now this H ion is causing acidic behavior in the solution. Is that right, बच्चों? यस सर। Everyone, anything else that you want to ask? No, sir. Okay, so let's move on towards. सर लिखने देते हैं। लिख लो जो लिखना है लिख लो। Let's move towards now color changes. सर Cl का नेगेटिव वन चार्ज है ना? जी बेटे। Color changes. If you talk about color changes, now you are allowed to say me whatever you want to talk about color changes. तो जरा बताइए कौन बता रहा था पहला कलर चेंज? Turn blue litmus paper. Red. Yes. So you need to keep remember बच्चों, हमारे पास होते हैं हमारे पास लिटमस पेपर होता है दो तरह का, ठीक है ना। हमारे पास लिटमस पेपर होता है दो तरह का, एक होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर, ठीक है ना, एक हमारे पास होता है रेड लिटमस पेपर, और एक हमारे पास होता है किस कलर का? अगर मैं इस लिटमस पेपर को देखूं, ब्लू शायद। एक होता है रेड लिटमस पेपर हमारे पास और एक होता है हमारे पास ब्लू, ठीक है ना। तो अगर मैं इस लिटमस पेपर को देखूं बच्चों, तो ये राइट नाउ हमारे पास एक लिटमस पेपर है, और ये कौन से कलर का मैं सपोज कर रहा हूँ अभी राइट नाउ? मैं इसको सपोज कर रहा हूँ ब्लू कलर का। वी हैव अ ब्लू लिटमस पेपर। और एक कैसा होता है बच्चों? एक हमारे पास होता है किस कलर का? एक होता है हमारे पास रेड कलर का। सो वी हैव एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर। डैम भी तो एक होता है। रेड, कौन सा होता है? डैम। डैम का मतलब होता है बेटे गीला। तो वो अलग से नहीं होता, वो यही होते हैं मतलब। यस, इन्हीं को आपको गीला करके यूज करना पड़ता है। फॉर सपोज अगर आपके पास कहीं पर ऐसा हुआ कि आपके पास कहीं पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज हो रही है, सही है? सही है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो गैस है। आई टोल्ड यू कि गैसियस स्टेट में वो आपको कलर चेंज नहीं दिखाएगा बिकॉज इट इज नॉट एसिडिक इन द गैसियस स्टेट। आपको लिटमस पेपर को गीला करना पड़ेगा। गीला करने के बाद जब आप उस गैस के आगे लगाओगे, तो जब वो गैस आके गीले लिटमस पेपर पर कनेक्ट होगी, तो वहां वो पानी में डिसॉल्व होगी, पानी में डिसॉल्व होगी, एच आयन प्रोड्यूस होंगे, देन द लिटमस पेपर शो द कलर चेंज, राइट? जी सर। सर ये जो लिटमस पेपर की लॉजिक है सर, ये क्या लॉजिक है कि ये ब्लू हो जाता है, रेड हो जाता है? मतलब ये किस उस पे है? रिएक्शन क्या होता है?
एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस कि आपके पास जो है ये कलर चेंजेस होते हैं। एक फ्लावर भी ये नेचुरल होते हैं, बहुत सारे नेचुरल भी होते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल भी होते हैं। एक फ्लावर ऐसा है अगर उसको आप एसिडिक जमीन में अगर आप उगाते हो तो वो आपके पास ब्लू कलर का होता है या रेड कलर का होता है, और अगर आप उसको बेसिक जमीन में उगाओगे तो उसी प्लांट का फ्लावर आपके पास ब्लू कलर का होगा। तो ये नेचुरल है, ठीक है ना। आप नेचुरल भी यूज कर सकते हो और आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक है ना। वो कलर चेंज शो करते हैं, जब उनके ऊपर एसिड आके अटैच होता है तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जब उनके ऊपर बेस आके अटैच होता है तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इट इज शोइंग यू द डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, राइट। तो ये आपके ओके पास सर। इसमें डेफिनेटली रिएक्शन हो रहा है, कुछ आपके पास कनेक्शन आ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस वहां पर चेंजेस ला रहा है, बट राइट नाउ दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि आपके पास कलर चेंज क्या हो रहा है। सो इफ यू आर यूजिंग ब्लू लिटमस पेपर, अगर आप क्या यूज कर रहे हो बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रहे हो, सो इन एसिड्स, इन एसिड इट टर्न्स रेड। क्या हो जाएगा बच्चों, वो ये लाल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इफ यू हैव alkalis, so in alkalis the red litmus paper turns blue. सही है भाई? जी सर, ठीक। This is what litmus paper that you need to keep remember. Litmus paper आपके पास दो कलर का होता है, एक रेड और एक ब्लू। अच्छा देखिए सर एक अगर और ब्लू पेपर लिटमस पेपर को सर एल्कली में डालें तो ब्लू ही रहेगा ना, और सेम सेम एज इट इज विद रेड yes जब वहां उसको उस पर पर डालने से। कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, there will be no difference, right? We have one more which is known as pH paper. एक pH पेपर भी होता है। Now बच्चों you need to remember the difference between these two papers. Litmus paper जो आपके पास है, this is only to identify the nature, right? It is only going to identify the nature. ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि एसिडिक है या बेसिक है, that's all. कितना एसिडिक है कितना बेसिक है ये नहीं बताएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, ये नहीं बताएगा। सिर्फ क्या बताएगा, एसिडिक है या बेसिक है, दैट्स ऑल। कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है ये आपको कौन बताएगा बच्चों, पीएच पेपर। ये कौन बताएगा आपको, पीएच पेपर, ठीक है। अब जो पीएच पेपर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीएच पेपर येलो कलर वाला भी यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पीएच पेपर हम ऐसा भी यूज करते हैं जिसके ऊपर वेरिएबल कलर होते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या होता है, एक पीएच पेपर होगा आपके पास, ठीक है ना। वो जो पीएच पेपर होगा इट विल बी हैविंग डिफरेंट कलर्स, उसके पास डिफरेंट कलर्स होंगे। कैसे डिफरेंट कलर्स होंगे, इनिशियली वो क्या होगा भाई, एक तो सेंटर से वो आपके पास होगा ग्रीन। ग्रीन का मतलब ये है कि वो न्यूट्रल, सेंट्रल से आपके पास न्यूट्रल है, या बीच में से न्यूट्रल है 7 पे, ठीक है ना। एसिडिक की तरफ जाएगा तो रेड होता जाएगा, एसिडिक की तरफ जाएगा तो रेड होता जाएगा, और बेस की तरफ जाएगा तो ब्लू होता जाएगा, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो ज्यादा रेड, और ज्यादा बेसिक होगा तो ज्यादा ब्लू। तो डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके ऊपर जो आपको डिफरेंट पीएच बता रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, पीएच पेपर को सॉल्यूशन में डिप करते हैं, डिप करने के बाद उसको पीएच स्केल से मैच करते हैं। व्हाटएवर द pH scale is matching over there, that will be the pH of the solution. So you can say that it is one of the method to identify the pH of the solutions, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, लास्ट वाली बात रिपीट कीजिएगा जो आपने कहा डिप करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, वो रिपीट कीजिए। dip the pH paper in the solution, dip the pH paper in the solution। पहले आपने ये करना है, pH paper को solution में dip करना है, then what you need to do, match the color of pH paper with pH scale। आप pH scale से उसको क्या कर लो, मैच कर लो, you will have the pH of the solution। definitely बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं आएगी बट आ जाएगी, आपके पास होल नंबर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है आपके पास आ जाएगा। डेफिनेटली 3.5 या 3.7 या 4.28 नहीं आएगा, लेकिन आपके पास 4 3 2 1 आ सकता है। सर बच्चों जी, सर इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, लेकिन या तो फिर वो किसी और चीज। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप कह सकते हो, पीएच सॉल्यूशन को कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है जी जी। सर मैं पूछ रहा हूँ ये पीएच की स्पेलिंग जो है, अगर हम इसको कुछ और लिख दें तो क्या वो मार्क्स कटते हैं? कुछ और क्या लिखोगे आप पीएच को, सर, बड़ा for पी और example- छोटा एच। नहीं उसका मसला नहीं है, अगर आप बड़ा पी और छोटा पी जी लिख सर, रहे हो तो उसका इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पीएच को जगह, अगर पीएच की जगह आप क्यूएच लिख दोगे तो डेफिनेटली मार्क कर देंगे, है ना। जी सर। ठीक है भाई। सर सर बिल्कुल एक्यूरेटली मेंशन करना हो तो फिर कौन सी चीज यूज होती है?
बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपने आंसर करना है किसके सर वो एक लिक्विड ड्रॉपर भी तो है, वो पूछना आपसे ने। आप यूज कर सकते हो pH, फेनोफ्थिलीन इथिलीन ठीक है। pH मीटर से सर आपको पीएच किसका स्टैंड फॉर करता है? डेसिमल्स में भी आपको मिल सकती है क्या pH, ठीक है ना। pH मीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट apparatus टू मेजर द pH। क्या कह रहे हो, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है? तो फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का पूछ रहा था। जी जी वो हम बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना। उसके अलावा भी किसी ने कुछ पूछा है pH का क्या? क्या पूछ रहा था कोई सवाल? pH का फुल फॉर्म पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कोई? जी सर देखिए मैं पूछ रहा था पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? यार pH का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव logarithm of H positive ions. It is actually the log of H positive ions, and this is not actually the part of your syllabus. If you are going to take chemistry in your A levels, then you will learn this in your A2 syllabus, right? ठीक है सर। Then we have 2 or 3 more solutions that can act as a indicator, right? As an indicator, we have the first one, which is phenolphthalein. phenolphthalein अब आपके सिलेबस से जो है omit कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है ना। बट यू कैन यूज दिस इफ यू वांट टू। बड़ा जबरदस्त इसका कलर चेंज आता है। phenolphthalein एसिड्स में बच्चों, एसिड में ये होता है कलरलेस, इट विल शो नो कलर इन एसिड, and alkali में it will show you the shocking pink color. That's the beautiful color. बहुत खूबसूरत कलर ये देता है। जी बेटे। फेनोल्फिलीन और थाइमोक्सिलीन एक ही होता है? नहीं, ये आपका सिलेबस में चेंज हुआ है, यही मैं बता रहा हूँ आपको। फेनोफ्थिलीन जो है चेंज होकर अब बन गया है थाइमोफ्थिलीन, ठीक है ना। पहले था फेनोफ्थिलीन, नाउ इट्स एडेड इन आवर सिलेबस न्यू वन थाइमोफ्थिलीन। हाँ, एसिड में स्टिल दे आर सेम। एसिड में थाइमोफ्थिलीन भी कलरलेस रहेगा, बट अल्कली में इट विल शो द ब्लू कलर, राइट? दिस इज द न्यू आवर सिलेबस। यस, सर एग्जाम में कौन सा यूज करें? एग्जाम में अब आपके पास ये आएगा। एटीपी में अगर आप बोलें तो आपके पास ये आएगा, और अगर आपको खुद टाइट्रेशन करते वक्त यूज करना है तो भी आप यही यूज करें। अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू टू यूज मिथाइल ऑरेंज। आई लव दिस टू यूज, ये बड़ा जबरदस्त है मिथाइल ऑरेंज। ये टाइट्रेशन में भी मिथाइल ऑरेंज यूज करवा रहे हैं। यस, मिथाइल ऑरेंज हर जगह ही इस्तेमाल हो सकता है। आपके पास आईजीसीएसई के क्वेश्चंस हों, चाहे जीसीएसई के हों, एक्यूए के हों, आईबी के हों, किसी भी लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां मिथाइल ऑरेंज आप यूज कर सकते हैं। इट इज द कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ एवरी सिलेबस, सो यू कैन यूज दिस। और इसमें आपको याद रखना है कि ये एसिड में देता है आपके पास रेड कलर। कैसा कलर देता है ये एसिड में? रेड। और अल्कली में ये देता है येलो कलर। स्टिल इट इज इटसेल्फ ऑरेंज इन कलर, बट ये अल्कली में येलो और एसिड में रेड कलर देता है। Is that clear, every one of you? Yes sir. Yes sir. These are the indicators that you need to keep remember for your learning. ये ACP में बहुत काम आएंगे, ये MCQs में भी काम आ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको सारे याद रखने हैं। Is that clear, everyone? Yes sir. आगे चलें। ओके सर। Yes सर sir. एक Yes. मिनट दे। चले चले लिख लें आप। And now we are moving towards the worst part of this chapter, which is actually chemical properties. अब आएगा मजा, हम देखते हैं कि how much you are getting things. Chemical properties, and there will be some skill test as well for you waiting. And let's start this. चलें भाई start करें। Yes sir, ठीक। Yes sir. Real chemistry। Actually, ओके सर बिस्मिल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Absolutely, Bismillah is very important. Yes, so actually, if you talk about chemical properties, so bacho, we have actually 3 chemical properties in acids that we need to keep remember. The first one is acid can react with metals. Acids metal se reaction kar sakte hain, and they will form what? Salt and hydrogen gas. This is the first thing that you need to keep remember. ठीक है ना? जब भी acid और metal मिलेंगे, salt और hydrogen gas बनेगी. Then if acid react with metal carbonate, any metal carbonate से जब भी वो reaction करेंगे, they will always form salt, carbon dioxide gas along with the water molecule, right? And also when acids react with bases, you can call them bases or you can call them alkalis. They will form what? Salt and water. And Salt and water. Plus yes, and
बेसिस को आप कह सकते हो बच्चों, दे कैन बी एज मेटल ऑक्साइड्स, एंड alkalis को आप कह सकते हो, दे कैन बी टर्म एज मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो सर सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना? Yes, same question. I have a I have one thing to tell you guys. Neutralization reaction से मुझे याद आया एक शेर, आप सब सुनना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल। बिल्कुल जी जी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक शेर है, वो कहते हैं कि किसी को पसंद है कर्लीज तो किसी को पसंद है लेस, राइट? जी क्या कहते जी हैं? सर। वो कहते हैं किसी को पसंद है कर्लीज तो किसी को पसंद है लेस, न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। हाँ Yes, सर sir. वाह वाह Yes, वाह। क्या sir, बात है सर, वाह वाह क्या वाह, बात, क्या देखें बात है। न्यूट्रलाइजेशन का भी एक शेर, ये केमिस्ट्री की पोइट्री है, ठीक है ना? तो आपको याद रखनी है, इससे हो सकता है आपको शायद ये न्यूट्रलाइजेशन याद रह जाए कि whenever acid reacts with base, all the time neutralization takes place. This is what you need to understand. Now let's start with the first property, which is whenever acid reacts with metals, they will always form what बच्चों? Salt and hydrogen gas, right बच्चों? जी सर। So this is जैसे what the alkali first metal property. के साथ क्या रिएक्शन होता होगा? क्या कह रहे हो? ये एसिड प्लस अल्कली मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होता होगा? एल्कली मेटल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है केविन, आपके पास आग भी लग सकती है अगर आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लें। तो एक तो आपको पता है एल्कली सर ये मेटल तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब आप एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट में डाल रहे होते हो ना, तो वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। राइट नाउ वी आर नॉट पुटिंग मेटल इन द मेटल सॉल्ट, वी आर एडिंग एक्चुअली मेटल इनटू द एसिड्स, राइट? ओके ठीक है। सो एसिड्स की अगर हम बात करें तो बताएं, अब्दुल मोइज मुझे बताएं, मैं कौन से एसिड से रिएक्शन कर रहा हूं, किस मेटल का? मोइज सर हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड का करवा रहे मैग्नीशियम से। चलें ठीक है, जैसा आप कहें। मोइज कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन मैं करा दूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। बच्चों टेल मी द चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन। +1. +1. So what is the charge of chloride then? -1. -1. Negative. Yes. Chloride is -1. And what about magnesium? Magnesium is from group number 2, right? +2. +2. So what will be the charge? +2. So what will be the formula between these two compounds or these two ions? MgCl2. MgCl2. Yes. You can see this. Iman Malik, you can also see over here, बच्चे देखो यहाँ पर आपके पास -1 है and it is +2. So the charges are opposite and the numbers are also different. When the numbers are different, the charges are also opposite. We can cross multiply the numbers only, right? So this 2 will be here and this 1 be here, right? और 1 हम लिखते हैं, ये तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास बच्चों? It will be magnesium chloride. Is that right? Right Yes, or not? sir. Right. Yes, So sir. what is the next product? Next product is hydrogen gas, right? Right or not? Sir, hydrogen तो gas compulsory। Yes, sir. sir the gaseous state ये में तो- होगी या फिर दूसरे स्टेट? दूसरी स्टेट क्या होगी बताओ जरा मुझे। हाँ बस सही है, Gaseous ही सर। गैसियस ही होगी। चलो आगे ना लाइन पे खुद ही। चलो जी सर। अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैव? सर 2. What we need to do? We should need to write 2 over here. HCl, 2 2 HCl. molecules of hydrochloric. Yes. So how many chlorines right now? 2. And we have 2 chlorines, right? सर ये बैलेंसिंग Yes, sir. कैसे करते हैं सर, एक दफा दोबारा बताएंगे Exactly. सर ये? Yes. दोबारा देखें. That just look at over here. That initially we need to balance the atoms on both sides, right? हमें same करना है. So what if you just look at on your right hand side? So we have 2 hydrogens, but if you look on the left hand side, so we have 1 hydrogen. तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? रिएक्शन से पहले 1 हाइड्रोजन था, रिएक्शन के बाद 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए? ऊपर से उतर गए? ऐसा नहीं हो सकता। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एटम्स को सेम होना जरूरी है। तो जरा मुझे बताएं, राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई। दैट्स ऑल। बैलेंसिंग में हमेशा हम पहले नंबर लगा सकते हैं और कहीं नहीं लगा सकते। आप ये ना सोचें कि मैं हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा दूं तो HCl का फार्मूला गलत हो जाएगा। फार्मूला खराब नहीं करते, उससे पहले लगाते हैं स्टोइचियोमेट्रिक नंबर। सही है? जी सर, क्लियर। Right, sir. Now what is the state of HCl?
all the acids are Aqueous. all the Aqueous, acids sir. Aqueous, sir. aqueous. And what is the state of magnesium? Solid. 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 And what about magnesium chloride? Right now you need to just keep remember that Aqueous, sir. all the chlorides are soluble in water except silver and lead, so it is soluble in water. And what about the hydrogen? It is Gas. Gaseous. Yes. Yeah. So I just want to ask one question from you guys. I just want to ask बच्चों जरा मुझे बता दीजिए what is one of the observation of this reaction? कोई एक observation बता दें कि जब ये reaction होगा तो सर हमें ये नजर आएगा. Bubbles will be produced. Bubbles will be produced. बस ये आपने Bubbles याद and रखना है. rapid physics. Bubbles, हाँ बल्कि bubbles. Absolutely. You just need to keep remember product में अगर एक भी गैस नजर आ गई, प्रोडक्ट में अगर एक भी गैस नजर आ गई तो आप लिख सकते हो क्या? आप लिख सकते हो एफरोवर्सेंस या आप लिख सकते हो फिजिस. आप क्या सकते हो? फिजिस या आप क्या कह सकते हो बच्चों? फिजिस ऑफ कलरलेस गैस या आप कह सकते हो एफरोवर्सेंस. ठीक है ना? Effervescence. सर कोई एक ऐसा स्प्रिंट भी तो होता है ना जो ये पॉप करता है हाइड्रोजन पर. वो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है, अभी हम करते हैं. पहले हम इक्वेशन सीख लें फिर उसके बाद करेंगे. सही है? जी सर, ठीक है. चलें जरा मुझे बताइए अली असलम, जरा मुझे आप फरमाइए, मुझे एक बताइए कि मैं और किसके साथ रिएक्शन करवाऊं? सर H2SO4 plus H2SO4 का रिएक्शन किसके साथ कराऊं भाई? calcium. कैल्शियम के साथ करा देते हैं. चलें ईमान मलिक, just look at over here. What is the charge on calcium बेटे? Calcium is from group number 2. So what is the charge on calcium? क्या चार्ज होगा बच्चों? +2. Calcium is 2 plus. And what is the if you can just see over here, एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? +1, right? Yes sir. जी सर. दो हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा? +2. तो सल्फेट पे कितना होगा? Sir -2. Yes, so sulfate will be -2. minus Just है? look at over here. तो आप यहाँ देखें, calcium 2 plus है, sulfate 2 minus है. Whenever the charges are opposite and the numbers are same, charges opposite or numbers same, we just combine them. So what will be the formula of the salt? Calcium sulfate CaSO4. Calcium sulfate. CaSO4 plus hydrogen. Yes, plus Yes. hydrogen gas. So do we need to balance this equation, bachcho? No, No sir. sir. No, sir. It's No it's sir. already No, sir. balanced. Yes, already that's balanced. good. Already balanced. So what about the state symbols? Sulfuric acid, Aqueous. 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 Calcium, Aqueous. Solid. Solid. calcium sulfate. Aqueous. 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 Gas. नहीं solid होगा बल्कि ये. ये हम salts में पढ़ेंगे ये हम. तो अभी right now मैं आपको इसमें कुछ नहीं कह सकता. सर We सारे need to सॉल्ट learn. सॉलिड होते हैं ना. सारे सॉल्ट सॉलिड होते हैं, बट राइट नाउ हमारे पास वो एक्वस सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि अगर पानी भी होगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, एसिड बनता ही पानी में डिसॉल्व होकर है, तो यहाँ पर पानी भी होगा. तो अगर कोई भी सॉल्ट जो पानी में सॉल्युबल होगा तो फिर वो एक्वस हो जाता है. ठीक है ना? बट राइट नाउ कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है. we will learn this in salts. हम वहाँ पढ़ेंगे all the sulfates are soluble in water except calcium sulfate, barium sulfate and lead sulfate. सर जी बेटे. SO4 का चार्ज कैसे पता चला? SO4 का चार्ज ऐसे पता चला, देखो सल्फ्यूरिक एसिड से हमने देखा, सल्फ्यूरिक एसिड में एक हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो गया? +2 हो गया. सो बाकी वाले का चार्ज कितना होगा? -2. सही है? ये solubility rules है ना वो. Also हाँ, next. वो हम सॉल्ट्स में याद करेंगे, तो अभी फिलहाल मैं आपको उस पर कुछ नहीं कह सकता. Okay sir. You need to keep remember कि कैल्शियम सल्फेट आपके पास सॉलिड होता है. तो अब मुझे बताइए हाइड्रोजन के अलावा कोई एक ऑब्जर्वेशन मुझे जरा बता दें इसकी. Sir, Solid. insoluble. जो salt है वो can be seen. Precipitation, I guess. Yes. Sir, white yes. precipitate formed. Yes, this is what you need to say, the white precipitates forms. ठीक है भाई? Yes sir. तो आप देखें यार, ऑब्जर्वेशन को अगर आप देखते हो तो आप यहाँ पर और से देख सकते हो कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप खुद बताते हो. आप एग्जामिनर को नहीं कह सकते कि एग्जामिनर तुम जाहिल इंसान हो, तुमने हमसे कैसे पूछ ली इसकी ऑब्जर्वेशन, हमने तो ये रिएक्शन पूरे 3 साल में नहीं किया. आप उसको नहीं कह सकते. ऑब्जर्वेशन आप खुद बताते हो जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है ना? तो यू नो दिस कि यार ये इनसॉल्युबल है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, यू नो दिस, तो आप बोल दो ना उसको. बट पेपर में हमें याद नहीं आता है ना. सर ये white क्यों बन रहा है? मतलब कोई और color नहीं है? White ही होता है.
देखो आपके पास ट्रांजिशन मेटल के अलावा जो भी मेटल का सॉल्ट होगा वो व्हाइट ही होगा, ठीक है ना। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ये भी, इट इज आल्सो योर नॉलेज कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, तो ट्रांजिशन मेटल के अलावा जो भी सॉल्ट होगा वो व्हाइट होगा, ठीक है। अच्छा सही है सर, समझ गया। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? सर ये जो होता है sir. कि व्हाइट में प्रेसिपिटेट वगैरह, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का वो जो है वो अलग से चैप्टर है हमारा। वो सॉल्ट्स के बाद हम इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस और एनाइंस करेंगे, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है ना। अभी यही चैप्टर Okay, कंटिन्यू sir. होगा, तो ये पूरे दिसंबर में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्लासेस मिस नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस करोगे, उसके बाद सॉल्ट्स करोगे, सॉल्ट्स का चैप्टर पेपर 1 Sir? पेपर 2 पेपर 4 सब में आता है, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करोगे, तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर ना, तो इसको कहीं सर मिस नहीं करना। लेकिन सर लेकिन सर दिसंबर में मेरे मिड्स है। सर सबकी हाँ, तो- मिड्स हैं। जी सर, हाँ, सबके तो मिनट मिड्स तो पूरी दुनिया के चल रहे हैं ना दिसंबर के अंदर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी हफ्ते में टोटल 2 क्लासेस हैं, वो भी 2 घंटे की ना, 24 घंटे हफ्ते में। अगर आप 24 घंटे देखो तो 7 दिनों के पता नहीं कितने घंटे बनेंगे, अच्छा खासे 100 200 300, उसमें से 2 घंटे मेरे लिए नहीं निकाल सकते यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। मैं इतनी नहीं मेहनत नहीं कर रहा हूँ सर, तुम्हारे साथ। आपके लिए नहीं निकाल नहीं लेंगे सर, सर। निकल लेंगे। सर फिर आपने तो इतनी बात कर दी सर, दिल पे लगी है बात। तेरी खैर। सही बात है सर, दिल पर लगी है। जी सर, निकल लेंगे। सर चलो फिर आ जाओ स्किल टेस्ट पे। अभी दिल की जगह अब हम दिमाग पे मारते हैं जरा, कि आ जाओ स्किल टेस्ट। नाउ इट्स योर होमवर्क दैट यू नीड टू डू बच्चों। थोड़ा सा काम है, ज्यादा नहीं है। थोड़े से का मतलब आपको पता होना चाहिए। सर उसामा के साथ थोड़े से का मतलब क्या है। सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे आप मैजल के साथ। दीज आर 5 मेटल्स, ये सारे मुझे बहुत पसंद है। मैजल, इस मैजल में से हम एक काम करते हैं कि हम ये एल हटा देते हैं, ठीक है ना। इन 4 से आपने HCl का रिएक्शन कराना है, इन्हीं 4 से आपने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराना है, इन्हीं 4 से आपने नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराना है। जस्ट लुक एट ओवर हियर, वी हैव 12 इक्वेशंस टू फॉर्म and you need to make balanced chemical equation of all these, right, with the state symbols, right बच्चों। सर मेजल क्यों, क्या था? Mazel, because they are moderate reactive metals, और जो moderate reactive metals होते हैं वो लैब में अब आसानी किए जा सकते हैं। अगर आप पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की बात करोगे तो दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर उनको आप एसिड में डाल दोगे तो दे विल बी एक्सप्लोसिव, राइट। उसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, तो इसलिए उसकी भी बात नहीं कर रहे। ठीक। Safety सर बात एक की बात सवाल कर है, रहे हैं। जी 10 सवाल पूछे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी,